بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. کمیٹی 12 ارکان پر مشتمل ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. سینیٹ سے نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ, پی پی کے فاروق ایش نائک, پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر اور جے یو آئی کے کامران مرتضی شامل ہیں. نون لیگ کے قومی اسمبلی سے خواجہ آصف, احسن اقبال, شائستہ پرویز اور پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں. سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر گوہر اور حامد رضا ایم کیو ایم کی رانا انصار کمیٹی میں شامل ہیں. پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس آف پاکستان بنائے گی. پی ٹی آئی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے مکمل طور پر الگ رہنے کا اعلان. اس بات کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا. اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکن خصوصی کمیٹی میں شرکت نہیں کرے گا. پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے اراکین کے خلاف سخت کارروائی کی منظوری دی گئی. ترمیم کو ووٹ دینے والے اراکین کی رکنیت منسوخی سمیت تادیبی کارروائی پر اتفاق کیا گیا. پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر اراکین کو شوکوز نوٹسز کی بھی منظوری دی گئی. اراکین کے شوکوز نوٹسز کے جوابات کی روشنی میں ان کے آئندہ کے مستقبل کا تعین کیا جائے گا. نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے نون لیگ کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تاثر دیا جا رہا ہے چیف جسٹس کے لیے یحییٰ آفریدی نون لیگ کے امیدوار ہیں. یہ تاثر قبل از وقت ہے. نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پارلیمانی کمیٹی کرے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے کمیٹی کے دیگر ممبران سے بات چیت ہوگی. چاہتے ہیں نئے چیف جسٹس کا نام زیادہ سپورٹ کے ساتھ آئے. خواجہ آصف نے کہا عدلیہ کی طرف سے اشارے آ رہے تھے, 25 اکتوبر گزرنے دیں پھر حکومت کو دیکھ لیں گے. پانی پی ٹی آئی کو پتہ چل چکا ہے ان کی پارٹی میں سب بکے ہوئے ہیں. اب وہ مثبت پیغام دیں گے لیکن بہت دیر ہو چکی ہے. سینیٹر فیصل واؤڈا کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا 9 مئی کیسز سے متعلق فوجی عدالتیں اس ترمیم میں نہیں آئیں تو اگلی میں آ جائیں گی. فوج کے بندے کو سزا ہوگی اور وہ بانی سے متعلق شواہد دے گا تو کیا معاملہ فوجی عدالت میں نہیں جائے گا؟ ملٹری کورٹ میں جانے کا فیصلہ ہو گیا. جب ملٹری کا بندہ کورٹ مارشل ہوگا اس کو سزا ہوگی اور وہ چیزیں اپنی بتائے گا اور بیانات لکھ کے دے گا, شواہد دے گا عمران خان صاحب کے لیے تنصیبات سے ریلیٹڈ, 9 مئی سے ریلیٹڈ, باقی چیزوں سے ریلیٹڈ, تو آپ سمجھتے نہیں ہوگا. اب آپ کہتے ہیں اگر امینڈمنٹ میں نہیں آیا تو پھر اگلی امینڈمنٹ. اگر اس کو سزا ہوگی تو تبھی ہوگی نا. وہ سزا ہو رہا ہے تو پھر کیوں وہ لکھ کے سارا کچھ بتائے گا؟ پھر تو وہ ڈینائی کرے گا. وہ تو تبھی لکھ کے بتائے گا اگر اس کو کوئی ڈیل مل رہی ہے. سر دیکھیں ڈیل ویل کا تو زمانہ چلا گیا. نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے, اور بڑے بڑے بول جاتے ہیں سر. اب عمران خان صاحب سافٹ میسیجنگ کریں گے, لکھ لے آج اپنے شو کے اوپر. انہوں نے ریلائز کر لیا کہ سب بک گئے. یہ بکاؤ بھگوڑے جو ہے پی ٹی آئی کے, اور جو مولانا صاحب کی ٹرولنگ شروع ہوگی ویسے پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن مولانا صاحب نے اپنی ایک ایک آدمی سے سمیت عمران خان صاحب نے تعریفیں کروائیں. ہیروزم آیا, انہوں نے کسی ایک آدمی کے لیے تعریف کا ایک ورڈ نہیں بولا. 20ویں ترمیم ہی وہ سوراخ ہے جس سے شگاف ہوگا اور حکومت گرے گی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہم احتجاج بھی کریں گے اور پارلیمنٹ میں بھی موجود ہوں گے. یہ حکومت اپنے ہی وزن سے گرے گی. خصوصی کمیٹی کا آئینی ترمیم کے لیے غلط استعمال کیا گیا. پہلے مسودے کی شکیں ہوتی تو پاکستان شمالی کوریا پلس بن جاتا. مولانا فضل الرحمان اور ہم آگے جا کر اکٹھے تحریک بھی چلا سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس انہوں نے کی ہیں, یہی وہ سوراخ بنے گا جس سے یہ شگاف لگے گا اور یہ گریں گے. ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے, اسٹریٹ موومنٹ بھی ماری جاتی رہے گی, ہم لوگ پارلیمنٹ پہ بھی ہوں گے. یہ گورنمنٹ اپنے ہی وزن کے اوپر جو یہ بنیاد, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ سنگ کی بنیاد پتھر کی نہیں ہے, یہ ریت کی بنیاد ہے, اور یہ اپنے ویٹ اور اس کے اوپر خود یہ درام سے گری. اس کمیٹی کا غلط استعمال کیا گیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے. اس گورنمنٹ کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. 56 اس 56 اور وہ جو شکیں تھیں اس کے ساتھ تو پاکستان جو ہے وہ برما کیا نارتھ کوریا پلس بننے جا رہا تھا. مولانا صاحب اور ہمارا یہ جناب کہ اس وقت ہم لوگوں کے پیرلل ٹریکس ہیں, آگے جا کے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. یہ سیاست ہوتی ہے, یہ پالیٹکس ہوتی ہے. اکٹھے کس بیسس پہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کا موومنٹ چلانے میں ہو سکتے ہیں, 100 چیزیں ہو سکتی ہیں.
सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत से 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली से आइनी तरमीम मंजूर कराई। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम की हिमायत की। 5 आजाद और JUI के 8 अरकान ने हुकूमत के पलड़े में वोट डाला। सेनेट में शिकवार मंजूरी के दौरान PTI और अपोजिशन ने वॉकआउट किया। इस पार्लियामान और आइन के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने एक नहीं बल्कि कई वज़राए आज़म को फारिग कराया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन। कहा, हुकूमती बिल में नून लीग के सबसे कम, PP और JUI के ज्यादा नुकात हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आईनी तारीख और अदलिया के लिए आज सिया दिन है। मियां साहब ने जो शेर पढ़ा, इससे अदलिया की तौहीन की, इसकी मजम्मत करते हैं। हमने आईनी तरमीम के मुसव्वदे में हुकूमत के एक लफ्ज पर भी इत्तेफाक नहीं किया। ये ऐवान आर्टिकल 239 और 256 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें ना होने तक आईनी तरमीम नहीं कर सकता। कराची बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम की मजम्मत कर दी। एलामिये में कहा गया है कि तरमीम पार्लियामेंट का हक है, लेकिन शफाफ तरीका नहीं अपनाया गया। ये जमहूरी तारीख में एक सियाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर कतगन के मुतरादिफ है। कराची बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को फौरी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर किया जाए। वकला बरादरी ने आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हामिद खान और आबिद जुबैरी ने कहा, हम सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस मानेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा किसी को चीफ जस्टिस लगाया तो इसे तस्लीम नहीं करेंगे। लतीफ खोसा ने कहा, कुफ्र का निजाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म और बेइंसाफी का नहीं। आईनी तरमीम बदनीयती की बुनियाद पर की गई। ये सब एक आदमी को हदफ बनाकर किया गया। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द कहते हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI अवाम के मुजरिम हैं। इन जमातों ने सहूलतकारी की। वकला इन तरामीम को मुस्तरद करते हैं। तहरीक चलाकर ये तरामीम खत्म कराएंगे। 56 के करीब क्लॉजेज में अमेंडमेंट की गई है। ये सारी की सारी बुनियादी तौर पे बदनीयती की बुनियाद पे है। ये सारा का सारा एक आदमी को टारगेट करके बनाया गया, और वो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसकी एक बहुत अच्छी साख है काबिलियत के लिहाज से। अगर आप उसको चीफ जस्टिस नहीं बना रहे, मर्जी का कोई चीफ जस्टिस ले आएंगे। ये पाकिस्तान की आवाम के मुजरिम है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम का भी नाम ले रहा हूं, इन्होंने बैसियत एक सहूलतकार के काम किया है। हम वकील इसको रिजेक्ट करते हैं। ये अवाम की मुफाद का कोई अमेंडमेंट नहीं। तहरीक चलाएंगे, हम उसको अंडू करेंगे, हम उसको खत्म। PTI का मुनहरिफ अरकान को असेंबली से फारिग करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, PTI के जिन अरकान ने इनहराफ किया, इन्हें पार्टी से भी निकालेंगे। हमारे पास दिफा के लिए कुछ नहीं, अब आगे जद्दोजहद है। रिलीफ सड़कों पर मिलेगा। जल्द वकला तहरीक शुरू होगी। डकैती हमेशा रात के अंधेरे में मारी जाती है। ऐसी हुकूमत ने आईनी तरमीम की जिसके पास कोई मैंडेट नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, जिन लोगों ने वोट दिया और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन बानी PTI के पीठ में छुरा घोपा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमेशा रात में होती है। आजाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है। ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। तो जब अपनी मर्जी के बंदे आप बिठाएंगे, मर्जी के बंदों से आप फैसले कराएंगे, तो कभी भी वो इदारे आगे नहीं बढ़ सकते। तरमीमें की गई हैं गैर आईनी तरीके से। कोई समझता है अगर कि गैर आईनी करके ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जब भी वहां मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम खत्म करेंगे। बरबला मैं कह रहा हूँ, हमें पता चल गया कि कौन जमीन फरोश था, कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था। जिन जिन लोगों ने वोट दिया या जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया, लेकिन इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए उस सब पे खड़े हुए, आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे और हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे जो फैसला साज है। इस वक्त मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ कि आप जवाब दे हैं इन चीजों का। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क में जो भी करें आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। लगता है ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील पर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? वकील फरोग नसीम ने कहा, सियासी मुकदमात अब आईनी मुकदमात बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, चले जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए,
3 हफ्ते तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं। वैसे भी इन्हें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। आपको बताएं कि नवाज शरीफ जुमे को और मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते बरतानिया जाएंगी। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ बरतानिया के बाद यूरोप और अमेरिका भी जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 दिन क़याम के बाद पीर को अमेरिका रवाना होंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 4 दिन क़याम के बाद वापस बरतानिया पहुंचेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ एमएनए आदिल बाज़ई को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने एमएनए आदिल बाज़ई को डीसीट करने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेजे गए मरासले में कहा गया था कि NA 262 से आदिल बाज़ई ने मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया। आर्टिकल 63A के मुताबिक NA 262 की निशिस्त खाली करार दी जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भेजा था। बानी पीटीआई की जाती मुआलजीन से मुआयने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करेंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि 15 रोजा शेड्यूल के मुताबिक चेकअप का इजाजतनामा जारी किया जाए। अडियाला जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई। जराए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पाबंदी में तोसी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया। इससे पहले 4 से 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई थी। 18 अक्टूबर को पाबंदी में 2 रोज की तोसी की गई थी। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान, कहा तरमीम से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वकार वापस मिला। अब बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मजबूत जमहूरियत और रोशन मुस्तकबिल के ताबनाक सफर की बुनियाद रख दी गई है। इदारों के दरमियान इख्तियारात के तवाजुन में तरमीम अहमियत की हामिल है। जियाले रहनुमा शर्जिली नाम मेमन बोले, तरमीम का मकसद विफाक को मजबूत करना है। पीटीआई तकसीम की सियासत एक तरफ रखकर तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का ऐलान, बोले तरमीम का तरीक़ाकार खुद बता रहा है कि आइन की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा, आज जमहूरियत और पार्लियामान की जीत हुई। जमहूरियत पसंद खुश और आमरियत पसंद आग बगोला हैं। जिनकी किस्मत में रोना धोना है वो कानून साजी में रखना ही डाल सकते हैं। आज अडियाला जेल के कैदी के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज डे है। छब्बीसवीं तरमीम से हुकूमत को फायदा नहीं होगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत की गलत फहमी है कि अदलिया को काबू कर लेंगे। नून लीग और पीपी का कोई सियासी किरदार नहीं, ये मार्शल लॉ की कठपुतलियां हैं। आईनी तरमीम 2-4 अदालती फैसलों की मार है। जैसे ही केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, हुकूमत को पता चल जाएगा। इस तरमीम से कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। जुडिशरी के इख्तियारात पे हुकूमत को ये सरप्राइज मिलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी गलत फहमी है कि इससे कोई जुडिशरी को काबू हो जाना है। सिर्फ ये है गैर जमहूरी एक चेहरा था इस हुकूमत का, मजीद अया हुआ है। पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के जजेस इस फाशिस्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े हों। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सियासी किरदार तो है ही नहीं। मार्शल लॉ की रजीम की कठपुतलियां हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने, पीटीआई ने बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स की है। बहुत बुरा जो टेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो बदलवा लिया। उससे कम नुकसानदेह जो टेक्स्ट है वो अब पास हुआ है। और ये टेक्स्ट भी आप देखेंगे ये 2-4 अदालती फैसलों की मार है। केसेस लगने में इनको लग पता जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती सियाबाब में इजाफा किया। पहले मेरिट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब पार्लियामान करेगी। अफसोस, कल जुल्फिकार भुट्टो के नवासे और मुफ्ती महमूद के बेटे ने आइन की रूह को मुतासिर किया। पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो जीते ही नहीं। और दूसरी जानिब जैकबाबाद में सैपको की नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस और बिजली के कुंडे मुनक़ता कर दिए।
रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मूसा बलोच। जैकबाबाद में महकमा सेप्को की जानिब से सब डिवीजन 2 के मुख्तलिफ फीडर्स में ऑपरेशन करके सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। 55 पीर बुखारी और सिटी 2 फीडर इसमें हमने ऑपरेशन किया है मिनिस्ट्री की तरफ से, सीओ साहब की तरफ। ये ऑपरेशन हमारा इलीगल कुंडा और डिफॉल्टर के खिलाफ जारी रहेगा। हमारा कंज्यूमर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बिल अदा करें, बर वक्त अदा करें और अपने इलीगल कुंडास को न्यू कनेक्शंस पे कन्वर्ट करें। सेप्को का बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होते ही बिजली चोर गैर कानूनी कनेक्शन काट कर फरार हो गए। सेप्को हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी कनेक्शन और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज, जैकबाबाद। कसूर के इलाके कंगनपुर की बात करते हैं, जहां पर डकैती, मज़ाहमत पर कत्ल, डाकू की मुतादिद शहरियों से लूटमार, नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल छीन लिया। एक राहगीर ने मुज़ाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ। जाँ बहक शख्स की शनाख्त इरफान और जख्मी की शनाख्त मिर्जा अहमद के नाम से हुई है। अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स वसूली से रोका तो हुकूमत ने आइन में तरमीम कर डाली। हुकूमत ने 4th शेड्यूल में तरमीम करके कंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स वसूली की इजाजत दे दी। अदालत की जानिब से कंटोनमेंट बोर्ड्स को टैक्स वसूली से रोका गया था। अदलिया ने कंटोनमेंट इलाकों से सूबाई हुकूमतों को टैक्स वसूली की इजाजत दी थी। 4th शेड्यूल में तरमीम के बाद अब कंटोनमेंट बोर्ड लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर टैक्स वसूल कर सकते हैं। टेक्सपो एग्जीबिशन 23 से 25 अक्टूबर तक कराची में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए TDAP के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुबैर मोतीवाला ने कहा कि गुज़िश्ता साल टेक्सटाइल की $16 अरब की एक्सपोर्ट थी। रवां बरस पाकिस्तान से $19 अरब की एक्सपोर्ट हो जाएगी। टेक्सपो नुमाइश में यूरोप, चीन, अमेरिका, अफ्रीकी ममालिक समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्की मंदोबीन और खरीदार शिरकत कर रहे हैं। इस साल हमने $16.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है और हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह ताला हम इसको 19 और 20 के दरमियान अगले साल उसको ले जाएं। ये हमारा टारगेट है कि हम एक्सपोर्ट को इतना इसके अंदर बढ़ा दें। जुबैर मोतीवाला का कहना था कि GSP बरकरार रहने से उम्मीद है कि रवां बरस टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में अच्छा इजाफा मतवक्को है। टेक्सपो नुमाइश में गैर मुल्की और मुल्की फैशन डिजाइनर्स का फैशन शो भी होगा। दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो मलबूसात हैं, पाकिस्तानी फैब्रिक जो है, प्रिंटेड, डाइड, हर तरह के जो फैब्रिक्स हैं वो आप लाइव यानी मॉडल्स के साथ देख सकते हैं। इसलिए हमने जो इसको फैशन शो रखा है। एक्सपो सेंटर में होने वाली टेक्सपो नुमाइश में 270 पाकिस्तानी नुमाइश कनिंदगान भी शिरकत कर रहे हैं। दुनिया में लेदर गारमेंट्स की तलब में इजाफा हुआ है। टेक्सपो में एक हाल सिर्फ चमड़े से बनी मसनूआत के लिए मखसूस किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। ऑल पाकिस्तान गुड्स मज़दा कोच ऑनर एसोसिएशन के ओहदेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें सिंध में कच्चे और पक्के के डाकुओं से बचाया जाए। तफसीलात जानिए अंजुम वहाब की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान गुड्स मज़दा ओनर्स एसोसिएशन के रहनुमा आदिल अब्बासी ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पंजाब में सिंध की फिटनेस वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने और गाड़ियों को बंद करने का सिलसिला बंद किया जाए। सिंध और KPK और बलोचिस्तान की फिटनेस को पंजाब के अंदर अलाउ क्यों नहीं कर रहे? ये कौन सी लाकानूनियत है? क्या पंजाब पाकिस्तान से बाहर है? क्या कानून से मुतासादिम नहीं है? आदिल अब्बासी ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में माल बरदार गाड़ियों को कहीं तंग नहीं किया जाता। सिंध की सरहद पर रोहड़ी और मोरो के नेशनल हाईवे पर कस्टम और एक्साइज की चेक पोस्टों पर रोक कर रिश्वत तलब की जाती है। एक्साइज की 5 जगह के ऊपर पक्की चौकियां लगाई गई है जो हमें दिन और रात तंग करते हैं और हमसे हजारों रुपए रिश्वत की डिमांड करते हैं। एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि टोल टैक्स बढ़ाने का मैकेनिज्म कायम किया जाए और मोटरवे पुलिस की जानिब से नाजायज चालान खत्म किए जाएं। सिंध में गाड़ियों से माल चोरी होने और कच्चे में डाकुओं की जानिब से अमले को अगवा करने पर FIR दर्ज करने की भी रिश्वत तलब की जाती है। कैमरामैन जीशान मरगूब के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज।